come in here. And no one there. Weird. Here. Okay, bye-bye. Bye. Adios. Adios. Mwah. Take your kiss away. Hello and assalamualaikum everyone. I hope you guys are good. My name is Nadia and today we will be talking about a few things like heart to heart. काफ़ी दिनों की हमारी मुलाकात नहीं हुई और because mostly जब मैं थोड़ी सी break लेती थी तो ये होता था कि either I'm depressed या फिर I'm super busy. So I'm super busy these days because of my studies. You guys know that. The first quarter थोड़ा सा easy गया लेकिन second quarter had been quite difficult. खासतौर पे कैसे बंदे के लिए जो है ना टेक से पहले भागता था लेकिन now I'm loving it. I'm kind of liking it, but still things are hard. I just realized 4:30 में मेरी क्लास भी है. Okay, so because I've been trying to make a video since 3 o'clock और अभी 4:10 हो रहे हैं तो yeah, just wasn't able to think कि मैं क्या बनाऊँ क्या बात करूँ. It's like after some time थोड़ा सा connect करना मुश्किल हो जाता है. Just wanted to talk about some recent things, some updates क्या हैं because I told you guys that I'll keep on sharing my updates. मादी तो अपनी मौजों में she's like 7.5 तो इसके बारे में कोई अपडेट इतनी हो नहीं सकती मादी के बारे में because we're just doing maths, spelling, and कभी इधर सर्दियाँ हैं तो we don't really have an active life. इससे पहले कि आप मुझे देख के कहेंगे नादिया तुम मोटी हो गई हो. यस मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, थोड़ी नहीं काफ़ी 2-3 किलो ज़्यादा हो गई हूँ क्योंकि mostly in winters you don't really go out for a walk. And though I say this to myself every day, नादिया थोड़ी सी वर्जिश करनी है, नादिया थोड़ी और एक्टिव हो जाओ because I do everything at home. Like मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ. Obviously Manal helps me a lot as well. लेकिन जब पढ़ने की बात आती है, जब ऑफिस का काम आता है तो I'm just glued to my chair, so which is not right. तो आज मेरा गला भी ठीक नहीं है तो आप लोगों को कुछ आवाज़ भी सही नहीं आएगी. ये जुम्मे से ख़राब है. So ऐसे ही होता है. मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कोई ना कोई इशू चल रहा होता है. तो I was like, despite मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, still I'll go ahead and make a video. Madi, is it working? Yeah. Right. So also Manahil asked me to make a video. Okay, Mama, there are some people, जो कि not in Pakistan, in US, जहाँ पे they're making videos on they're unschooling families, but the videos are very controversial कि भाई ये किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं. They just like कि हमारे बच्चे free range हैं, we're unschooling them, so अगर वो math करना चाहता है तो वो कर लेता है. मतलब yeah, in English. तो तो she's like कि हमारी family का भी यही जो है ना वो तो नहीं जाता है कि just please clarify कि how you unschool. तो शायद अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो मेरी पिछली वीडियो से कि I'm a disciplined person, ठीक है, more organized and a disciplined person. And बेशक मेरे बच्चे स्कूल जाते हों या स्कूल नहीं जाते हों, I am a strong क्या कहते हैं उसको, a strong believer कि they should be disciplined. They should know कि manners क्या होते हैं. They should be disciplined. और जब हम unschooling की बात करते हैं तो we do study, we do read every day, we do our work every day. They know कि they have some goals and they work towards those goals. ऐसे नहीं है कि बस free range का मतलब है कि हाँ ये है कि if they're playing something जो कि if she's playing with the toys और ऐसा कोई काम मट्टी में खेल रही है तो या physical activity है
running and this kind of things. So tab I'm not like nahi wapas aao, nahi tum padho ye. No, it's not like that. So I believe that it plays a part of growth and development as well. But they know that कि उनके डे का स्ट्रक्चर क्या है और उन्होंने किस तरह से अपने दिन को गुजारना है. सो दिस अगेन इज़ दैट कि आपको पहले रोल मॉडल बनना पड़ता है, पहले आपको बताना पड़ता है कि दिस इज़ हु यू आर. आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज रखनी पड़ती हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में एज अ मदर भी आपको अपने लिए गोल सेट करने पड़ते हैं. और बच्चे ये देखते हैं कि हाँ शी हैज़ something productive to do in life and she's moving towards that, she is working towards that, तो वो भी फिर ऑटोमेटिकली उस पर काम करता है. सो जिस तरह बहुत सारे लोगों में मैंने ये चीज़ देखी है, बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पे सवाल भी करते हैं कि भी हमारे बच्चों का क्या बनेगा, मतलब what is there to learn और things like that. तो मेरी 2 बेटियां हैं and I believe that कि girls should be given though क्या कहते हैं, I'm not saying कि boys should not be given education, but girls should be given double the education to make them extremely independent and strong. I do believe that, and my parents believe that as well. So that's the reason my father didn't hesitate to give me any opportunity that was available out there to help me grow myself into a good human being, though I'm still trying to be a good one. तो बात ये है कि even I have like 2 girls, I'm not worried कि उनका फ्यूचर क्या होगा, कमाएंगी कैसे, करेंगी कैसे. I know they like कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनको आपको अपने बच्चे के अंदर डेवलप कर देते हैं आप, जिसको सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं आजकल के दौर में, इमोशनल इंटेलिजेंस या सॉफ्ट स्किल, थिंग्स लाइक दैट कि यू नो कि ये काम मैंने करना है. जिस तरह अब वो ओ लेवल्स कह रही है तो शी नोज के व्हाट शी हैज़ टू डू. आई डू नॉट इंटरफेयर इन व्हाट शी इज़ डूइंग. मैंने सिर्फ उसे ये कहना है कि भाई रजिस्ट्रेशन कब करनी है एंड आई विल डू इट, बट दैट्स इट. इसके अलावा आई डोंट meddle into her affairs and everything she has to manage on her own. वो खुद ही अपने लेसन्स खुद मतलब यूट्यूब से पढ़ती है और ख़ुद ही वो अपने पास पेपर सॉल्व करती है. दिस इज़ व्हाट शी डज एंड हाउ शी इज़ मैनेजिंग इट आई डोंट रियली आस्क हर. जो भी चीज़ें उसने मुझे शेयर करनी होती हैं, जो चीज़ उसने मुझसे हेल्प मांगनी होती है, शी आस्क दैट फ्रॉम मी. लेकिन मैं एक एक्टिव, जिसको कहते हैं कि एक्टिवली मैं उसको बैठा के पढ़ा नहीं रही होती. उसकी वजह यह है कि she's learning by this whole exercise of giving her exams, she's learning how to take up a goal and how to execute it. But that's it. So life भी एक इसी तरह है, आपको हर टाइम पे गोल्स मिलते रहेंगे और हर टाइम पे आप अपने गोल्स खुद सेलेक्ट करते रहेंगे sometimes. And बेहतर ये है कि कोई आपके लिए गोल सेलेक्ट करे, आप खुद अपने लिए गोल सेलेक्ट करें and you just work towards those goals in discipline. फिर ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आ जाता है. So that's the thing. इसके साथ ही मैंने आप लोगों को अपडेट भी दे दी, मतलब what's going on here. Baki, just quickly, I wanted to talk to you about one scam that my friends told me about. It is American Certificate के नाम पे अनस्कूलिंग के जो यानी कि स्कूलिंग से तो आपको ठग रहे थे. अब कुछ लोग इस तरह के भी आ गए मैदान में जो कि अनस्कूलिंग के नाम पे अमेरिकन सर्टिफिकेट का ढांचा देके. क्योंकि बहुत सारे हम लोग मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं जिनकी मेरे साथ बातचीत भी होती रहती है. देखो लाइक कि यार अच्छा ठीक है, हमने अनस्कूलिंग तो करा ली, अपने बच्चे को शुरू से ही करा ली, लेकिन अब ज़ाहिर है अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, 14 का है या 15 का है, तो अब मैट्रिक करना है या ओ लेवल्स करना है. क्योंकि सब आस पास पूछने लग जाते हैं कि भी क्योंकि उसके जो दूसरे कज़न्स वगैरह होते हैं, दूसरे जो उसके एज ग्रुप के लोग होते हैं, वो सब कोई ना कोई इस तरह के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो सब पूछते हैं कि भी ये क्या कह रहा है या ये क्या कह रही है. तो फिर उनको जाता है कि अच्छा आप क्या करें. फिर जब वो एक बहुत लीनियंट सिस्टम से प्रॉब्लली आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अच्छा हम पहले तो अनस्कूल कराते थे, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन एग्ज़ाम्स देने हैं, उसके लिए ज़्यादा स्टडी कैसे करेगा मेरा बच्चा. और मैं मतलब हमने तो उसको इस तरह का माहौल दिया जिसमें हम उस पर कोई जोर नहीं डाल रहे, हम उसको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे, तो वो किस तरह एग्ज़ाम्स देगा. फिर दैट्स द टाइम जब आप इन स्कैम्स के लिए फॉल कर सकते हैं. हो सकते हैं कि
देखिए स्कैम्स जो होते हैं ना वो हमेशा आपकी वीकनेस पे जाते हैं, आपके फियर्स को टैकल करते हैं। तो वो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग इज दिस कि दे आर चार्जिंग इन डॉलर्स। एंड जहाँ तक मेरा आइडिया है कि कनेडियन सर्टिफिकेशन और अमेरिकन सर्टिफिकेशन की यहाँ पे इक्विवेलेंस नहीं मिलती है। Still, you guys have to do your own research. I'm not on Facebook, I'm not on any other social media platform या किसी ग्रुप्स वगैरह में जहाँ पे मुझे पता हो कि यार लेटेस्ट हॉट न्यूज़ क्या चल रही है अनस्कूलिंग सोसाइटीज़ में। तो आई एम जस्ट अ लोनर। आई हैव दिस यूट्यूब चैनल। इसके अलावा मेरा किसी के साथ कोई ऐसा ख़ास कोई कांटेक्ट नहीं है। देयर आर सम फ्यू फैमिलीज जो मुझे कभी ऑफ एंड ऑन कांटेक्ट कर लेती है, दे आस्क मी फ्यू क्वेश्चंस एंड दैट्स इट। इसके अलावा I don't stay in connection with big lot. So yeah, that's the thing. तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ these scams। और आपकी अपनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए है, सिर्फ ये कि आप ये सोचें कि ओ मैं थोड़ा सा शो ऑफ कर सकूँ कि नहीं जी मेरे पास तो अब ये सर्टिफिकेशन है या ये है, ऐसे नहीं। प्लीज़ डोंट जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज़ द ability, the capabilities और the growth of your children। ठीक है, अगेन हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है कि भाई हाँ हमने अनस्कूलिंग की थी तो देखिए हम शाइनिंग ब्राइट कर रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। नो। सो मेट्रिकुलेशन आपके पास, दिस इज़ द बेस्ट राउट। नहीं करना चाहते आप, ओ लेवल्स पे जा सकते हैं, इट्स अ बेस्ट राउट। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा अपने बच्चों को आपको ये बताना पड़ता है कि भाई इट्स गोना टेक a lot of work और it is going to you know, बेशक इसकी कोई वो नहीं होगी कोई वर्थ, इसकी वर्थ सिर्फ इतनी ही है कि आप डिसिप्लिन के साथ अपनी स्टडीज़ को करना और इसको कि along the way बाय प्रोडक्ट ये भी होगी कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर आप बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी बेसिक्स भी बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको, अगर आप ओ लेवल्स की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो दैट्स द बेसिक प्राइमरी लेवल। तो इसी तरह आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस की बहुत अच्छी बुक है ओ लेवल्स की, तो वो अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो वो उसको बहुत, जब वो कोई भी टेक्निकल फील्ड में अगर बाहर जाता है तो उसको एटलीस्ट बहुत सारी बेसिक्स का पता होगा कंपैरेटिव टू हिज पीयर्स। तो ये बात है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर हियर। सो उसके अलावा that's pretty much it. These two things I wanted to say कि यार आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और घर में पढ़ाएं। अगर आप स्कूल भेजते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मेहनत करें अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है, उनकी अखलाकियात के ऊपर, उनके मैनर्स के ऊपर, और make them good people. Thank you very much. Bye.